So I was discussing about for the last two classes I was teaching about ICT, the concept of ICT, the characteristics of ICT, its various uses, and then I also talk about these advantages of ICT. ICT के advantages के बारे में भी मैंने बात किया. So today I will try to complete this particular topic. Although we have already discussed many aspects of this particular topic, but still I will try to complete this topic today only. So as I think this slide already I have shown you in the earlier class also, but still I will try to continue from here. So the if you think about talk about the scope of ICT, it has got different areas where it can be applied. That is teaching learning process, for the publication purpose, for the evaluation purpose, for the research aspect. There are various uses of ICT in research. You are experiencing that one also. Nowadays, you are busy in your dissertation work, and you must be sitting with your laptop and this internet connection throughout the day, searching many things on the website, and also doing this drafting your chapters, and again you are doing analysis and other things, and you are trying to finalize your chapters. So in the research you have got plenty of uses of ICT, as well as uh, you have got use of ICT in administration also. So administration, you already know this. If you go to for particular educational institution, particular college and other. Good morning, sir. Good morning, good morning. There are so many technical issues whenever I am trying to start this particular class. Some problems are happening. Some students are repeatedly coming and then asking me for joining this class. Why they are late, I don't know. We have already got this link one day before your class, but still you are coming late. So these are the various scope of ICT, where you can use ICT in your educational setup. I also have shown you this particular slide in the next class. This was there that if ICT you are using, it is able to address maximum of your sense organs. Not only one or two sense organs, maximum of your sense organs can be, uh, what you say, it can be producing stimulus to various सेंस ऑर्गन्स ऑफ योर्स, एंड दैट्स वाई आपको आईसीटी यूज़ करना है. आईसीटी के यूज़ से आपको उसको प्रभावी ढंग से किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं. सो दैट इज़ आल्सो वन एस्पेक्ट दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट. That's what I am saying, that so by the use of ICT, the interest of the class is there, then the students are also feeling motivated. The attitude towards learning also become positive. So you have to use ICT at least when you are teaching 21st century learners, maybe school for school stage or in the higher education stage also. To provide rich presentation, it is necessary to use the various components like text matter presentation, animation presentation, graphic presentation, audio presentation, and video presentation. So once if you are in the higher classes, it may not be required that whatever slides you are presenting, there may be
so much animation or color combination is there. But for specifically if you are teaching the lower class students, you have to make your slides a little bit what you say presentable. The text matter should be colorful, animation should be there, images should be there, and that's why that's what you can do whenever you are trying to teach the students using ICT. There are various videos where you can learn. Nowadays, I'm thinking about that not only you are attending my class, many of you must be busy in taking classes online also. So there you can think about how to use ICT in better way to reach to the students. बहुत सारा एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, देन यू कैन हैव दिस what you say, you can write in a copy or a notebook, and directly it can be used to make a video, and that video can be also given to the students. So that possibilities is also there. So you have to and on YouTube various videos of how to create online videos for taking classes. You can go through those video and you can prepare very nice videos. अभी आप लोग के पास बहुत समय है, स्पेसिफिकली जो लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, they can go through those videos and try to prepare. This is the time only, because see what I was saying, that you just imagine how much other online resources are there. Suppose academic resources, academic platforms are there where you share your work, like SlideShare is there, like LinkedIn is there. But how many of us are visiting those websites for what increasing your access to the people? You have to go for a platform where it is most popularly means it is most popular one. So YouTube is that type of platform. If you put your video, you put your work or skill on YouTube, you will get maximum citation or maximum what you say visibility. That term should be there, visibility. So you try to, nowadays you try to prepare videos. I am also trying to both means I am in the process of preparing certain YouTube videos specifically for certain topics of this AMED and then research and others. So that will, I'm little bit now busy with your classes, but once your classes are, means your curriculum is going to complete now I will try to prepare certain videos which will be helpful for others. So you also try, आप लोग भी try कीजिए कि कुछ YouTube videos बनाइए, and you have got what you say, many of you have got so much of talent. आप अपना अपना जिस टैलेंट, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको रुचि है, उस तरह का एक वीडियो आप बना सकते हैं. सो दैट विल बी आल्सो वन आइडिया विच आई विल सजेस्ट यू. वो आपको मैं एक सजेशन आपको दे रहा हूँ. यू कैन गो एंड डू दैट वन. Then other scopes of ICT in education, a person from village also can refer to the latest information research every day. This one you can already you can easily understand क्या है ये. इसका मतलब कि एक रिमोट एरिया से भी अगर कोई है तो that person can also access whatever information wherever it is required. That information he can have. टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया. टेलीविजन पे मैंने लगता है पिछले क्लास में या डे बिफोर previous class also I discussed that nowadays we are trying to reach to the students through this television also. क्योंकि सबके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होगी और मोबाइल का स्मार्टफोन होगा, ये जरूरी नहीं है, और विथ इंटरनेट कनेक्शन. बट टेलीविजन इज स्टिल quite common in all the houses, and if one television is there it can be access to multiple peoples. multiple लोग उसको देख सकते हैं एक बार में. लेकिन अगर ज़्यादातर अगर मोबाइल होता है you can see that one person at a time is using. ये भी आपका एक लिमिटेशन है, ये हम लोग को देखने में मिलता है. but television is not that type of use. Television is a device where number of people can utilize it at a time. तो वो भी एक बेनिफिट है. आप पूरे एक, अभी तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है, यू कैन नॉट कॉल द होल कम्युनिटी एंड सीट एंड ट्राई टू वॉच द टेलीविजन. बट स्टिल नंबर ऑफ पीपल दैट डे, लास्ट डे one image was shared by Varun to me on WhatsApp. There was one picture. People are sitting in a room and watching Ramayana.
इट वाज फ्रॉम हिज विलेज ओनली, अपने गांव का एक फोटो डाला हुआ था, एक साथ 10 लोग बैठ के रामायण देख रहे थे। तो ये यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेलीविज़न में वो कैपेबिलिटी है कि इट कैन दैट रीच इज मैक्सिमम इन कंपैरिजन टू दिस वन स्मार्टफोन। तो वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। सेकेंड वन इज डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट्स एडवांस सर्जरी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। ये भी आपको पता होगा कि बहुत सारे सर्जरी आजकल इसके द्वारा किया जाता है। Still people are coming now Piyush has come. Only Birendra, Surya, Chandan, and Vinita the allotted. Everyone has come. Wait, I just wait for a minute. I'm just trying to do something. Some technical problem is there. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So I was showing this particular slide. Yes, sir. The difficult experiments. The difficult experiments we have already seen experiment, and different surgery also can be conducted using this particular ICD media. So nowadays you can see that expert from the medical background can guide you to how to operate a particular surgery, or how to do a particular surgery. So that is also one of the help that you can get from ICT. Then LCD projectors can be used for effective training. LCD projectors are, you must have experienced many of the ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे आपका एलसीडी प्रोजेक्टर्स के द्वारा प्रेजेंटेशंस आर देयर, एंड इट हैज़ गॉट मैक्सिमम इम्प्लीकेशंस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाया जा सकता है। द मैन पावर प्रॉब्लम, द ह्यूमन मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड। दिस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। मैन पावर के कारण जो प्रॉब्लम होता है कि एक काम को करने के लिए 10 व्यक्ति लगेगा, दैट कैन बी डन बाय ए पर्टिकुलर डिवाइस, ए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द use of this particular ICT, and many of the mistakes which are committed by individual or humans, that can be also avoided. तो ये भी ICT का एक अच्छा यूज होगा. In online tutoring, just what I am doing now, in online tutoring or online classes, the students logs into his or tutor through the use of internet at home. The student asks the question. See, this is a regular class. Here you are not going for a tutorial. I have already given you what is the idea of tutorial when you are in which, I think this semester or in the third semester also, many a times you have got this idea what is tutorial. Tutorial is specifically for the development of particular child, maybe in terms of remedial teaching, maybe in terms of enrichment teaching. तो ये यहाँ ट्यूटोरियल के फॉर्म में भी ऑनलाइन मीडियम को यूज कर सकते हैं कि आपको एक suppose you have taken the subscription of a particular app like Byju's and other educational app. So you can ask whenever you face a doubt, you can log in there and you can ask your doubts, and immediately your doubts are being listened and they are
being resolved by the resource person के द्वारा उसको resolve भी किया जाता है. तो that is also one of the use of ICT. These are various platform where you can have those tutorial classes. और आपको जैसे मैंने बताया बाइजू है और आपका और you just name some more educational apps. कुछ लोग आपको बताइए कुछ. Sir, Vedantu है. And any other? Unacademic classes. So simply learn here. So many are there. So you can use those platforms while teaching the students. So it also goes for motivating the learners. आपको बहुत सारा motivation मिलता है. Learning process can be anywhere and anytime. Students use interactive whiteboard in classroom. So interactive whiteboards are there. Okay, you already know what is smart board. So interactive whiteboards are also there, which can be used as ICT tool. Suppose a teacher can use this one, smart boards and interactive whiteboards. The student can also use. Suppose he has bought a interactive whiteboard. That whiteboard, there also certain programs are there, certain packages are there where you will get the study material. You can ask, you can go for the exercise, and again you can go for the solution, so that will help you in learning. So that is one of the use of ICT also. So there are various uses. You have to think of that how effectively you can use ICT. I have already given you certain hint that nowadays you try to prepare certain interesting educational videos, whichever, whenever, at least you 20 of you are there. I hope at least one video of around 30 minutes you try to prepare on an educational topic. It may be from the school education. That will give you. Nowadays many students are doing, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं. बीएड के बहुत सारे स्टूडेंट आजकल बना रहे हैं. यूट्यूब चैनल उन्होंने ओपन किया है और डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज पे वो वीडियोस बना रहे हैं. सो यू ट्राई सी some of like me, I have got certain limitation. बहुत सारा काम हमारा, और जैसे जैसे हमारा काम और हमारा एज भी बढ़ता है, we have gotten certain limitations. लेकिन आप लोग जो कि बहुत सारे लोग अभी बहुत यंग एज में हैं, you have got enough potential. दिन भर आप बहुत सारे और काम कर सकते हैं. and I am giving you one of the task which you can do it now. अभी उसके लिए मौका भी है, आपके पास समय भी है. that you prepare certain videos, educational videos, and try to upload on YouTube. It is very easy. कोई झमेले की बात नहीं है. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करना है. टेबल टॉप कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं. यू कैन आल्सो टॉकिंग हेड पोटेंशियल को भी यूज़ कर सकते हैं. टेबल टॉप कैमरा में हो गया जिसमें आप कुछ लिख के एक वीडियो बना रहे हैं, आपका कॉपी दिख रहा है, आपका सीट दिख रहा है. बहुत सारे स्कूल्स में आजकल टीचर जो भेजते हैं वीडियोज़, उसमें आपको दिखेगा कि वो जो स्टडी टेबल है वो आपको दिख रहा है और वहाँ पे टीचर्स कॉपी में कुछ वर्कआउट कर रहे हैं और बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं. दैट कैन बी डन. एंड यू कैन आल्सो गो फॉर टॉकिंग हेड्स, मींस वेयर योर हेड इज विजिबल, यू आर डूइंग द थिंग्स. सो पहले आप टेबल टॉप के लिए ट्राई कीजिए, देन यू कैन गो फॉर दिस वन टॉकिंग हेड, एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन आल्सो गो फॉर ओवरहेड. सपोज ओवरहेड वाला किस तरह से होता है, जैसे कि आपको कोई कुकिंग स्किल आपका दिखाना है, खाना बनाते हैं और खाना में कैसे बनाना है, तो उसमें आपको एक ओवरहेड कैमरा चाहिए जिससे कि आपको ऊपर से दिखाया जा सके कि आप क्या कर रहे हैं. सो दैट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन डू इट नाउ. यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन प्रिपेयर वीडियो, यू कैन शेयर विथ योर first you can share with your family members, then you can share with your friends, you can take feedback, and then you can prepare more. Some of you must be very good on it. आप लोग में से बहुत लोग बहुत अच्छे होंगे ये सब काम करने के लिए, तो वो उनको करना चाहिए ऐसा. तो टीचर्स के लिए कैसे इसका यूज है, ये दे कैन टीचर्स कैन एक्सेस टू लेसन प्लान्स, नेटवर्क्स ऑफ टीचर्स, पेडागोजिकल टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. लेसन प्लान बनाने के लिए इसका यूज हो सकता है. टीचर्स अपने अंदर बहुत सारे टीचर के साथ कनेक्टेड होने के लिए आपका आईसीटी का यूज कर सकते हैं. इफ यू हैव गॉट ए ह्यूज कनेक्शन ऑफ टीचर्स और यू कैन से peers, you can share various ideas.
बहुत सारे आइडियाज। देखिए, जब आप कनेक्टेड होते हैं एक अपने एक प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के साथ, तो आपको आप जैसे मैं बताऊं कि ये वीडियो बनाने का ये ऐप है, कोई एक टीचर और बता सकता है कि ये ऐप के थ्रू बना सकते हैं। सो यू कैन हैव डिफरेंट आइडियाज जनरेटेड इफ यू आर इन द नेटवर्क ऑफ टीचर्स। pedagogical techniques, different pedagogical techniques you can learn, different pedagogical techniques you can master. So these things also can be done when you are using ICT. Information resources, I should not talk about this one. ICT itself is a huge collection of information resources. Whatever information you require, you can get it from this particular internet or ICT, using ICT. Publication, you already know, now you are doing dissertation and some of you are writing articles, some of you will be writing your article. So in publication also ICT has got various roles to play. The simplest way is that you are using Word, the most common one, but there are dedicated softwares, dedicated files where you can create your आर्टिकल आप उसमें लिखिएगा, वो ऑटोमेटिकली उसका फॉर्मेटिंग हो जाएगा। साइटेशंस, व्हाटएवर साइटेशंस यू विल गिव, ऑटोमेटिकली द रेफरेंस विल बी जनरेटेड। ये सब है, आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे। बहुत सारा ऐसे एप्लीकेशंस हैं कि आप जैसे इस पर्टिकुलर, सपोज आपने लिखा शर्मा 2005 has stated this one, so once you are typing this one, automatically इसका रेफरेंस भी आपके एंड में उसका ऐड हो जाएगा, आपको अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं है। एंड इट इज ऑफ लॉट्स ऑफ हेल्प। आप सोचते हैं ना कि एपीए स्टाइल में हम लोग को रेफरेंसिंग लिखने में कितना तकलीफ होता है। someone of you has asked me yesterday, कुछ मैसेज करके पूछा कि एक मैगजीन में अगर कोई आर्टिकल है जिसका ऑथर नहीं है तो हम उसको कैसे रेफरेंस करेंगे। I cannot remember each and every aspect। मेरे को जर्नल का याद रहता है और आपका बुक का याद रहता है, और दूसरे के लिए जब जरूरत पड़ता है आई हैव टू फॉलो द मैनुअल देखते हैं, देन अकॉर्डिंगली आई यूज्ड टू राइट द रेफरेंस। बट नाउ इफ यू सी, if the software is already available, once you are giving the citation, automatically reference are generated। so ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा, आपको रेफरेंस लिखने की चिंता नहीं करना है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा हेल्प होगा और उसके बारे में आपको सोचना है और उसको तो कोशिश करना है कि आप उसको करें, यूज करना सीखें। सो then many ebooks are available on websites, ebooks are there nowadays, many online libraries are there where you can use the online facilities, you can read books and then you can enhance your knowledge। encyclopedia is also available on the internet। encyclopedia भी आपको available है, आप different subject area, different concept के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। evaluation के लिए भी see nowadays online tests are there, results can be generated online, feedback can be given, softwares are there, progress reports। so evaluation में भी इसका बहुत सारा use है। we are thinking about, nowadays we are thinking about, UGC has also given guidelines that because nowadays it is not possible to have regular classes or face-to-face regular classes, so what we are doing, we are trying to, UGC has given the guidelines that you increase the internal component of evaluation and you try to take the evaluation online। बहुत सारे इंटरनल असाइनमेंट के लिए या ऑनलाइन वाइवा के लिए या एमसीक्यूज के द्वारा बच्चे का असेसमेंट करने के लिए उन्होंने गाइडलाइंस दिया है कि आप उसको करिए। तो इसमें आईसीटी हेल्प करेगा। और आप देख सकते हैं अभी इमीडिएटली आपने कुछ दिन पहले एक दो आपने टेस्ट भी दिया है और कितना जल्दी इसका रिजल्ट जनरेट हो जाता है, कितना जल्दी प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाता है, कितना जल्दी आपको फीडबैक मिल जाता है। यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। सो दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट यूजेस ऑफ आईसीटी। ये एक सिग्निफिकेंट यूज ऑफ आईसीटी है। आईसीटी का इवैल्यूएशन में यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है। स्टूडेंट एक्सेप्ट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग and its assessment, developing expertise in the process। just see, once you have gone through that quiz, 2 quizzes you have already done, so you take the responsibility of your learning। आपने जब उसमें जितना भी मार्क्स आपका आया, आपने सही किया गलत किया जो भी किया, you are not complaining to anyone। लेकिन जब एक रेगुलर सेटअप में हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, आपको
एग्जाम होता है एंड देन यू आर थिंकिंग अबाउट कि ये चीज़ हमको नहीं पढ़ाया गया, ये टीचर ने हमको ये नहीं बताया, ये टीचर ने ऐसे मेरे को बताया था, मैंने ऐसे लिख दिया था इसलिए मेरा मार्क्स कम गया. You are in a position to blame someone else also, or you are trying to say that that particular person has written in the style of the teacher, that's why he has been given more marks. But once you are going online for online assessment, where the answers and answer keys are already prepared, and you know that there is no biasness in evaluation, you take the responsibility of योर वट एवर परफॉर्मेंस यू हैव गॉट. आपका जो भी परफॉर्मेंस हुआ है उसके लिए आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, आप किसी और के ऊपर इसके बारे में नहीं जिम्मेदारी देते हैं और ना उसके बारे में किसी को कंप्लेन करने जाते हैं. टीचर एप्लीकेशन ऑफ करिकुलम कैन बी मॉनिटर बाय एनालाइजिंग टेस्ट रिजल्ट. टीचर्स कितना प्रभावकारी टीचिंग दे रहा है, उसका लर्निंग कितना प्रभावकारी है. ऐसा देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए टीचर इज टीचिंग समथिंग and then after a certain period of time someone has asked you that okay, evaluate, go for the examination, and once the examination is being done, based on the result of the teacher is being asked that कि आप बच्चे इतना खराब किए हैं, आपने अच्छा से नहीं पढ़ाया. So ये सारा चीज को सोचते हुए टीचर्स में भी going for certain biasness while इवैल्यूएशन के समय थोड़ा बायसनेस कर सकता है कि चलिए थोड़ा मार्क्स अच्छा खासा दे देते हैं, नहीं तो बच्चे का परफॉर्मेंस अगर खराब होगा देन इट विल अल्टीमेटली कम टू मी. ये बायसनेस हो सकता है, बट वंस यू आर गोइंग ऑनलाइन दैट पर्टिकुलर इशू इज नॉट देयर. आपने कुछ भी पढ़ाया है, कैसे भी पढ़ाया है, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बच्चे ने अच्छा किया है तो क्रेडिट विल बी गिवन टू यू. अगर खराब किया है तो भी आप ही को ब्लेम किया जाएगा, बिकॉज once that this test is being prepared, it is based upon the curriculum. ये आपसे पूछ के नहीं बनाया गया है, करिकुलम को ध्यान में रख के बनाया गया है, टेकिंग ऑल दी प्रिकॉशंस, ऑल दी मेजर्स, अपना सारा प्रिकॉशंस मेजर्स को देखते हुए उस टेस्ट को बनाया गया है. टेस्ट में अगर बच्चा अच्छा करता है देन यू आर टीचिंग परफेक्टली. सो टीचर का असेसमेंट के लिए भी आप ICT का यूज कर सकते हैं. This can be used by teachers for assessing and improving their own performance, meeting state and national standard. इससे टीचर खुद को भी कंपेयर. सपोज एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, let me give one example. I have taught you research paper, okay, and once you appeared for that examination, that one or two paper, and after that question paper and whatever standard of question paper was there, it is set up by external agency, एक नेशनल यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब के द्वारा बनाया गया. तो उसमें आप कितना अच्छा किए उसका कहीं ना, आप मेरे को बोलें या ना बोलें, अगर आप उसमें खराब करते हैं कहीं ना कहीं आई विल फील दैट आई एम नॉट एबल टू टीच यू रिसर्च इन ए पर्टिकुलर वे. और अगर आप उसमें अच्छा करते हैं तो हमको लगेगा कि नहीं, आई हैव टॉट समथिंग टू यू. तो इसलिए ये कहीं ना कहीं टीचर्स को भी पता करने का कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पर्टिकुलर कॉलेज में कुछ से कुछ पढ़ा दिए और उसी के आधार पे आपने एग्जाम भी ले लिया, मार्क्स भी आ गया बच्चे का, हम बोलेंगे कि सब कुछ आता है बच्चा को. ये दिस इज नॉट द वे ऑफ इवैल्यूएशन. आप अगर नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, आप अगर इस तरह के क्विज में अच्छा करते हैं, दैट विल गिव मी फीडबैक दैट आई हैव टॉट वेल और नॉट. नेशनल स्टैंडर्ड के साथ आप कितना अपने आप को कितना ऊपर रखते हैं, तो ये भी आपको एक मौका मिलता है. एंड दैट कैन बी आल्सो पॉसिबल थ्रू ICT. अगर ICT नहीं रहता तो हम ये क्विज और ये सारे कुछ कंडक्ट नहीं करा सकते. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मैं किसी यूनिवर्सिटी को लिखता कि चलिए आप एक क्वेश्चन पेपर बना के दे दिए और फिर वो क्वेश्चन पेपर हम देंगे स्टूडेंट्स को. और दिस इज क्वाइट अनप्रैक्टिकल टॉक. ये अनप्रैक्टिकल टॉक है. कोई भी एक्सपर्ट या प्रोफेसर बैठ के इतना खाली नहीं बैठा हुआ है कि एक क्वेश्चन पेपर बना के और आपको के भेजेगा. तो ये ICT कैन हेल्प. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे ऑफ यूजिंग ICT. रिसर्च में इसका काफी यूज है. सर्च इंजिन्स, यू नो हाउ मेनी multiple uses of search engines are there. Any variable, any text you type in Google, you will get something out of it. So that one you can use. Search engines are very much useful. E-libraries are there, internet Wikipedias are there where you can get lots of information. Use of ICT in day-to-day life of student and teachers. इसके साथ साथ ICT का स्टूडेंट के लाइफ में भी बहुत यूज है.
और वो अपने और टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। Students use ICT as reference tool. They use computers to browse the internet, to look information, project information, and literature survey. This is quite clear. I don't want to go in detail. Teachers use ICT in research for preparing teaching material. बहुत सारे नए टॉपिक, बहुत बार ऐसा होता है नाउ डेज फॉर लास्ट 4-5 और आई कैन से 1 डेकेड, 2000 के बाद से करिकुलम में पहले बहुत कम चेंजेस हुआ करता था, ट्रेडिशनल चीज पढ़ते थे। लेकिन ये पिछले 6-7 साल से करिकुलम, ये स्कूल एजुकेशन का हो, हायर एजुकेशन का हो, हर बार इतने सारे चेंजेस और नया नया चीज, क्योंकि इसमें भी टेक्नोलॉजी का रोल है, नया नया चीज को लेके आया जाता है जिसके ऊपर अभी तक बुक नहीं आया है। ठीक है, बुक मतलब आपका जो फिजिकल बुक सब दोज आर नॉट अवेलेबल, ऑफलाइन बुक्स आर नॉट अवेलेबल। देन हु इज द सेवियर, कौन हम लोग को बचाता है, टीचर्स को। देयर द इंटरनेट जो है वो आपको हेल्प करता है टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू गो एंड टेक द क्लास। आई हैव गॉट डिफरेंट एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज टीचिंग ए रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जब मैं वहाँ पढ़ाता था, वहाँ के सिलेबस में नया नया चीज़ सब था। आप लोग के सिलेबस में भी नया नया चीज़ है, उसको भी हम लोग इंटरनेट से खोजते हैं। तो जब वो those things are there, and maximum of the time whenever these new things are there, they are being given to us, जो हम लोग को दे दिया जाता था। अच्छा, आप लोग नए नए हो, आप लोग इसको मेहनत करो और पढ़ाओ इसको। So maximum of the time we have to search the things for the internet, और इंटरनेट से निकाल के हम लोग प्रिपेयर करके हम क्लास लेते थे। सो इंटरनेट इज वन ऑफ द सेवियर। सो नाउ आल्सो एज ए स्टूडेंट, जब आपको ये आप लोग बोलते हैं कि सर इसके ऊपर कहाँ बुक है, कौन सा किताब है, डोंट बॉदर सो मच अबाउट बुक्स। बुक्स तो ठीक है, बुक्स पढ़ना चाहिए, आपको बुक्स मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह बुक अवेलेबल है, हमेशा आप बुक खरीद ही लेंगे। ठीक है, बुक भी आपको ऑनलाइन, अगर आपके पास स्किल डेवलप है, आप ऑनलाइन बहुत सारा बुक डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन स्टिल इफ टाइम इज नॉट देयर, आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में जब भी कोई डाउट आता है, वी इमीडिएटली वांट टू रिलैक्स योर माइंड, अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं। तो इमीडिएटली अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है, गो टू द इंटरनेट, सर्च द कीवर्ड्स, यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिलेगा। सो दैट इज वन ऑफ द वे जहाँ पे आप जाके अपनी चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड देन यू कैन डिलीवर टू द स्टूडेंट्स। Researchers use ICT tool to collect, process, and analyze data. This is also quite easy to understand. I will not go through this one. School administrators use ICT tool for administrative purpose to make sure that the entire operations run smoothly. Example, to get student details at the click of the button. I have already told you about this one. Administration, like admission, the management of the institution, then taking attendance, collecting their fees, generating results, then giving salary to the teachers and other staff. So in these all things also ICT can be very much helpful. So then in administration, certain points are already given here also. Employees register, employee का register maintain करना है. It is not required that you go and sign every day manually. It can be done by using technology. Nowadays, this one is there. This biometrics attendance are there. That is also one application of ICT. Only library records, you maintain it online. Progress report, students register, placement cell records also. How many students are placed? How many students are placed in colleges, schools, and others, and how they are doing there. Their follow-up also, not that you are just writing that how many are placed, and how many are retained there, sustaining themselves there. They are satisfied there. That also you used to maintain in that particular placement record. Alumni record also you can maintain in the this ICT platform. School campus record, different aspect, how many classrooms are there, how many smart boards are there, how many overhead projectors are there, everything you can maintain there. Finance and accounts you can do there. Timetable you can generate, you can update it also immediately. Manually it may take time, but immediately there are timetable generators that will immediately tell you that there is a class. हम लोग manually जब बनाते हैं, हम लोग कितना भी सोच लें, कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं कि एक ही जगह पे एक टीचर को दो क्लास में भेज दिया गया, टाइम टेबल में दिखा दिया गया. बट दैट मे बी हैपनिंग व्हेन यू आर डूइंग इट मैनुअली. बट अगर आप
आईसीटी का यूज के थ्रू करेंगे, आपको जैसे ही उस टीचर अगर वो अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं उसको दूसरे जगह फिट करते हैं, इट विल गिव यू ए सिग्नल दैट ही इज नॉट अवेलेबल. So that is also one aspect of ICT, that you can generate an timetable online and you can update it immediately also. आपको बता देगा, कोई क्लास में कोई टीचर मान लीजिए एब्सेंट हो गया, immediately it will notify that कौन कौन से टीचर फ्री हैं, कौन से टीचर वो उस क्लास को जा सकते हैं. So that timetable can be also managed through the ICT. How ICT is being used very effectively? Broadening horizons with more opportunities for creative expression. Creative expression के लिए आपको मौका मिलता है. मैंने अभी जस्ट आज क्लास में ही इतने बार मैंने बात किया यूट्यूब चैनल का. YouTube channel is one platform of showing your creativity, an acceptable platform. You must have got the idea of TikTok videos also. लेकिन टिकटॉक वीडियोस को कोई उतना सीरियसली नहीं लेता है, या वो उतना ज़्यादा उसको सब अप्रिशिएट नहीं करते हैं. इंस्टाग्राम भी है एक, लेकिन इंस्टाग्राम को भी उतना ज़्यादा ऑफिशियली एक्सेप्टेबल नहीं है. यू कैन गो आइदर फॉर यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म विच इज़ अप्रिशिएटेड इज ट्विटर. बट ट्विटर में आप ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते हैं जितना कि आप यूट्यूब में दिखा सकते हैं. तो ICT गिव्स यू अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन शो योर टैलेंट, योर स्किल्स with creative expression, creativity के साथ. So that you try to explore. Flexibility to study where, when and how best suits you. तो ये आपको ये भी मौका देता है कि आपको जब एक वीडियो आप देख रहे हैं, ऑनलाइन कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और उसी समय आपको कोई काम आ गया, यू कैन पॉज दैट वीडियो, यू कैन वॉच इट लेटर, आप बाद में उसको देख सकते हैं. इंक्रीज मोटिवेशन थ्रू लर्निंग दैट स्टिमुलेट्स एंड स्ट्रेचेस. तो आपको मोटिवेट करने के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं. बार बार कोई एक वीडियो जो आपको बहुत अच्छा लगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, उस वीडियो को बार बार देखिए, एंड दैट विल आल्सो हेल्प यू टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. वाइडर एक्सेस टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन. वाइडर एक्सेस टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन. लर्निंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो सकता है इसमें. सपोज एन एग्जाम्पल आई विल टेल, इफ यू आर टेकिंग एन रेगुलर क्लासरूम, if I say that it should be interactive, the teacher, the students may feel that they should ask question or not. The teacher may feel disturbed on other, and he may scold me also if I am not proper in asking my question, if my question is not up to the mark. लेकिन online platform में ऐसा नहीं है. You just see that nowadays many online videos are going on, and in parallel and in simultaneously the particular audiences, they are typing their questions. अपना क्वेश्चंस वो लोग टाइप कर रहे हैं उसी समय, और टीचर्स भी उस क्वेश्चन को भी देख रहा है. उस क्वेश्चन को देखते हुए आपको वो आंसर दे सकता है. नाउ आई एम इन this YouTube, this Google Meet presentation. In this Meet also, if you are typing in the chat box, I can know that if some questions are there with which I can answer or not. तो ये यहाँ भी पॉसिबल है. इफ यू आर राइटिंग सर्टेन क्वेश्चंस हियर, आई कैन सी दोस क्वेश्चन एंड आई कैन अकॉर्डिंगली व्हेनेवर आई फील कंफर्टेबल, जब भी मेरे को कंफर्टेबल लगेगा उस समय मैं आपको आंसर दे सकता हूँ. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द aspects, one of the use of ICT. I think you are not able to see the presentation. I will just share it again. Yes, sir. Presentation is I will share it. Yes. So that is also there, that you can ask the question, you can raise, and that helps in increasing the participation. Participation बढ़ाने में वो help करता है. Sensible choices about when not and how to use new technology to enhance, enrich and extend learning. ये आपको डिसाइड करने में मौका देता है कि कब आपको टेक्नोलॉजी यूज करना है, कब किसी चीज को, मतलब यू कैन मैनेज इफेक्टिवली. आपके ऊपर है. सपोज व्हेन वंस आई एम in the interaction mode, I will ask you that you unmute your mic and try to ask your question. I can, from my end also, I can mute everyone. So I can manage when I want to listen from you and when I want to present my things. So this can be managed by the use of ICT and can be managed by the teacher.
Increase commitment to learning works. Commitment also increase because just let me give you some example. जब भी मैं गूगल क्लासरूम में आपको कोई असाइनमेंट देता हूँ, और इन प्रीवियसली विकी स्पेसेस आर देयर, एडमोडो भी था, आई यूज्ड टू टेल यू दैट ये मत सोचिएगा कि आपका असाइनमेंट, आपका एक डेडलाइन दिया हुआ है कि तो आपको इस डेट को देना है, सो you wait for that particular date, because once you start working on your assignment it will be visible to me. आप अपने असाइनमेंट में काम करना स्टार्ट कर दिए, उस दिन से हमको पता चल जाएगा कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कितने देर उसके साथ बैठ रहे हैं। ऐसा होगा कि आपको 10 दिन का टाइम दिया गया, ऑन 10th day I will see you that you have started your work on immediately you are submitting. इज नॉट एन एप्रिसिएबल टास्क। ये कोई एप्रिसिएट करने वाला बात नहीं है कि आपको 10 दिन का समय दिया गया और 10वां दिन आप बैठे उसको लेके और जमा कर दिए आप। इससे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट हुआ है या किसी के साथ उसने, या ऑथेंटिक वर्क नहीं है। But if I can see you, I can follow you that from the second day onwards you have started working on that one. ICT can help in that one because you can see the history. If some collaborative work is there, आप हिस्ट्री देख सकते हो और हिस्ट्री से पता चल सकता है कि कौन कितना उसमें कमिटेड होकर काम किया है। सो एक कमिटमेंट भी बढ़ाता है। ऐसा स्टूडेंट को फील नहीं होता है, जैसे ज़्यादातर जो मैनुअल वर्क होते हैं तो उसमें स्टूडेंट फील करता है कि मैंने तो सारा मेहनत किया, दूसरे ने तो कुछ भी नहीं किया और इसको ज़्यादा मार्क्स मिल गया, या कहीं स्टूडेंट्स टीचर ये ना सोचे कि उसने भी उतना ही मेहनत किया। दैट फीलिंग इज देयर। स्टूडेंट यूज्ड टू कंपेयर कि अरे मैं तो जितना मेहनत कर रहा हूँ दूसरा स्टूडेंट नहीं किया है, लेकिन उसने कहीं से एक अच्छा रिपोर्ट बना के ले आया है और कहीं टीचर को लगेगा कि वो भी उतना ही मेहनत किया है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज कैन बी केप्ट इन यूजिंग आईसीटी। आईसीटी के यूज के द्वारा वो ट्रांसपेरेंसी आप रख सकते हैं। एनहांस एंजॉयमेंट एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड द सब्जेक्ट। डिफरेंट यू कैन एनहांस द इंटरेस्ट। टेक्नोलॉजी का यूज करके आप एनहांस कर सकते हैं इंटरेस्ट को। आप डिफरेंट मीडियाज आर देयर, फोरम में डिस्कशन कर रहे हैं, चैट बॉक्स में चैट कर रहे हैं। whenever doubt is there you can ask your doubt, it can be immediately clarified not only by the teacher, by your peer group also। तो ये बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि आईसीटी के द्वारा आपके पॉसिबल है। इंक्रीज इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, आप अपने हिसाब से कितना पढ़ना चाहते हैं, कब पढ़ना चाहते हैं, कितनी देर में पढ़ना चाहते हैं, ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं। गेटिंग ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, आपके ऊपर है कि आप कितना डाइजेस्ट कर पाते हो। आई एम जस्ट सेइंग दिस वर्ड बिकॉज यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। नाउ डेज इंफॉर्मेशंस आर सो मच अवेलेबल। पहले था कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन था, आप खोजते थे कि और कहाँ, अब तो आप कुछ, मेरे पास बुक ही नहीं, मैं क्या पढ़ूंगा, अब तो असाइनमेंट ही नहीं है, मैं क्या करूंगा। लेकिन अभी क्या है, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, नॉलेज अवेलेबल है, यू हैव टू इंक्रीज योर कैपेबिलिटी ऑफ डाइजेशन। आपको पचाने की कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी। खाना जब आपके पास बहुत सारा अवेलेबल है, आप कभी चले जाते हो कभी कोई पार्टी में, तो सुबह से तैयारी करते हो, खास करके बॉयज़ जो हैं, तो वो सोचते हैं, लोग भी जब कॉलेज टाइम में थे तो ये सोचते थे कि आज शाम को तो मेस में पार्टी है, स्पेशल डे है, तो हम लोग सुबह से भी थोड़ा तैयारी करते थे। तो इसी तरह से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको इंफॉर्मेशन इतना अवेलेबल है, तो हम कैसे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं हैं डाइजेस्ट करने का। मेरे पास बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे नेटवर्क वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, सो मेनी इंफॉर्मेशन दे यूज्ड टू शेयर। आई हैव टू इंक्रीज माई कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजिंग देम। हमको अपना कैपेबिलिटी बढ़ाना पड़ता है जिससे कि हम इसको मैनेज कर सकें कि कौन सा कोर्स करना है, या कौन सा पेज विजिट करना है, कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा मटेरियल डाउनलोड करना है। तो ये अपनी कैपेसिटी आपको बढ़ानी होगी। तो दिस वन आल्सो शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, कैसे अपना डाइजेशन कैपेबिलिटी आप बढ़ाएं इन टर्म्स ऑफ डाइजेस्टिंग इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट करने के बारे में। इंक्रीज इन सेल्फ गेटिंग ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, समझना। उसको भी समय, ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन मिल रहा है दनादन हम पढ़े जा रहे हैं, वीडियो एक देख रहे हैं, या थोड़ा सा इधर देखें फिर उधर, इस तरह से नहीं। आपको उसको समझना भी जरूरी है, क्या वीडियोस में है, क्या टेक्स्ट मटेरियल में है। दैट वन आल्सो यू हैव टू बी कैपेबल ऑफ। यू हैव टू इंक्रीज दी स्किल, इंक्रीज मोटिवेशन टू स्टे ऑन वर्क, बिहेव बेटर एंड प्रोड्यूस हायर क्वालिटी आउटपुट। अगर आईसीटी का यूज करते हैं तो आपका वर्क का आउटपुट
बहुत ही अच्छा होगा, क्वालिटी आउटपुट यू कैन डू. जस्ट फॉर एग्जांपल, नाउ यू आर डूइंग योर डिसर्टेशन वर्क एंड many of you, I should not name, many of you are going to complete it very soon also, but you just see the presentation. वो प्रेजेंटेशन आपको डिसर्टेशन देखने के बाद आपका जो फाइनल डिसर्टेशन में आपको दिखेगा कि अलग अलग लुक दिख रहा है आपको, समथिंग डिफरेंस इज देयर. किसी का देख के आपको लगेगा कि किसी तरह से जमा कर दिया है, किसी का देख के लगेगा कि नहीं उसने अपना बेस्ट वर्क किया है, बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है. सो दैट शुड बी देयर. वो आपको अंदर वो स्किल होना चाहिए कि कैसे आप ये फॉर्मेटिंग और पेज सेटअप और डिज़ाइनिंग ये सबको सही से करते हैं. सिर्फ कलर देख देख के कलर पेजेस आप निकाल लेंगे, ये भी कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, वो प्रिंटर का अचीवमेंट है. यू हैव टू थिंक दैट कि आपको कहाँ कलर यूज करना है, किस तरह का आपको जो ग्राफ सब ले रहे हैं उसमें कौन सा कलर यूज करना है, फॉन्ट कैसा होना चाहिए, आपको फिगर्स का कहाँ मेंशन करना है, फिगर का कैप्शन कहाँ मेंशन करना है, टेबल का कैप्शन कहाँ मेंशन करना है, टेबल के बीच में लाइन स्पेसिंग क्या होगा. बहुत सारा चीज बताया जाता है आपको, बहुत सारा चीज आपको खुद से सीखना पड़ेगा. बहुत सारा चीज सब चीज आपके साथ शेयर नहीं कर सकता है एक टीचर, एक एज ए सुपरवाइजर. और आजकल जहाँ हम लोग ऑनलाइन मोड में है, सब कुछ आपको हम नहीं बता सकेंगे, कोई भी नहीं बता सकता. यू हैव टू गो एंड सर्च थ्रू इंटरनेट कि एक पीएचडी का डिसर्टेशन डाउनलोड कीजिए, एमएड का डिसर्टेशन डाउनलोड कीजिए, ट्राई टू सी द फॉर्मेट, किस तरह का कलर उसने यूज किया है, किस तरह का फॉर्मेट उसने यूज किया है. एंड इफ यू आर इन इंडिया, आप इंडिया में हैं, ट्राई टू टेक द इंडियन एग्जांपल्स. इंडिया का एग्जांपल लीजिए, फॉरेन का एग्जांपल को आप लीजिएगा तो देन यू हैव टू आल्सो टेक द रिस्क ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी का रिस्क भी फिर आ जाएगा. इंडिया में जो एग्जांपल सब है, इंडियन डिसर्टेशन सबको डाउनलोड कीजिए, देखिए थर्ड चैप्टर में किस तरह से फॉर्मेटिंग हुआ है, फोर्थ चैप्टर में किस तरह से फॉर्मेटिंग हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली यू आल्सो मेक ऑल द अरेंजमेंट्स. Learn more independently at their own pace. Do things they cannot do using traditional method and resources. Do more work and work more quickly. आपको तेजी से काम करने में ये हेल्प करता है ना. जो काम आप बहुत समय लगा के करते थे, वो आपको कोई चीज के बारे में कोई समझा रहा है और ओरल वे में आपको नहीं समझ में आएगा, आप एक वीडियो देख लीजिए आपको तुरंत समझ में आएगा. सो दैट इज द डिफरेंस. की टू सक्सेस इन द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी. टीचर का एटीट्यूड में, अगर टीचर के एटीट्यूड अगर पॉजिटिव होगा, देन ओनली द आईसीटी कैन बी यूज्ड. कितना भी आईसीटी आप लेके आ जाइए, लेकिन टीचर अगर पॉजिटिव वे में नहीं देखेगा आईसीटी को, एवरी टाइम ही विल फाइंड इश्यूज अराउंड इट. उसका सेफ्टी का इशू है, तो टेक्निकल इशू है, तो करंट का इशू है, तो इंटरनेट का इशू है, तो कभी भी सक्सेसफुल, उसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम रहेगा तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, आईसीटी का यूज नहीं हो सकेगा. यू जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ जूम. अभी भी आज के डेट में जूम को लेके अभी भी अगर आप रिव्यूज पढ़िएगा तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जूम ही है. बट वी हैव डेवलप ए डिफरेंट आइडियाज अबाउट दैट जूम प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग उसका ओनर नहीं है, और उसके कारण उसको इतना ज़्यादा नेगेटिविटी में डाल दिया गया कि उसको आजकल यूज़ नहीं कर रहे हैं सब. फिर धीरे धीरे उसके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, जब दूसरे प्लेटफॉर्म में लोग फेल कर रहे हैं, देन अगेन दे आर गोइंग टू जूम प्लेटफॉर्म. सो ये भी एक बात है कि आपको अपने टीचर्स के एटीट्यूड में आपको पॉजिटिविटी लाना होगा. प्लान एंड कमिटमेंट होना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी अवेलेबल देयर, एजुकेशनल, ये सारे चीज आपको अवेलेबल होंगे. उसके साथ साथ टीचर का एटीट्यूड होगा, देन ओनली द आईसीटी कैन बी यूज इन इफेक्टिव वे. और वैल्यू एडिशन भी होना चाहिए. जो भी आप आईसीटी आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर, जैसे कि इथिकल इश्यूज सब है, कॉपी पेस्ट आप कर रहे हैं, प्लेगरिज्म वाला इशू है, तो ये सारे चीज को आपको एड्रेस करना है. और ट्रेनिंग नीड है ना, बहुत सारे लोगों को आईसीटी कैसे यूज करना है उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन यूज इट इफेक्टिवली. आईसीटी फॉर टीचर्स ट्रेनिंग वर्सेस टीचर ट्रेनिंग ऑन आईसीटी इन एजुकेशन. एक है कि आईसीटी को जब टीचर्स को प्री सर्विस में जब उनको पढ़ा रहे हैं उस समय हम लोग, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आईसीटी फॉर टीचर ट्रेनिंग हो रहा है, वर्सेस टीचर ट्रेनिंग ऑन आईसीटी इन एजुकेशन. और वो फिर कैसे आईसीटी को यूज करेगा अपने प्रोफेशन में, दैट इज वन अदर एस्पेक्ट. वो कैसे यूज करेगा आईसीटी को, वो भी उसको देखना, वो भी देखना जरूरी है. दोनों चीज उसको सिखाने की जरूरत है. ये नहीं कि हम अपना
एजुकेशन के लिए, प्री सर्विस टीचर्स के एजुकेशन के लिए हम आईसीटी यूज कर दिए, साथ ही उसको ये भी सिखाना जरूरी है कि वंस दे आर गोइंग फॉर टेकिंग देयर ओन क्लासेस, व्हेन दे आर गोइंग टू जॉइन देयर प्रोफेशन, वहाँ आप आईसीटी कैसे यूज करेंगे। टीचर्स टीवी इसमें एक एग्जांपल है, मोबाइल फोन फॉर टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टेक्स्ट टू टीच, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं जिसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। तो ये जनरली देखा गया, पहले तो हम लोग लैपटॉप के पीछे, कंप्यूटर के पीछे भागे, लेकिन जब स्मार्टफोन्स विथ एडवांस फीचर्स केम, जब स्मार्टफोन, क्योंकि कंप्यूटर लैपटॉप को लेके हमेशा टीचर्स के पास एक कंप्लेन होता था कि हमारे पास तो कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जो मोबाइल, जो दूसरे मीडियम से कभी भी टीचर्स को या जो जिनको ये करना पड़ रहा है उसको ये पता चल जाता है कि लैपटॉप, मोबाइल मेरे पास रहेगा तो कहीं ना कहीं बाद में मेरे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो शायद वो मोबाइल नहीं खरीदता। पहले तो मोबाइल सब लोगों ने खरीद लिया, सारे टीचर्स हो या जनरल पॉपुलेशन हो, सब लोगों ने खरीद लिया। एंड देन गवर्नमेंट थॉट ऑफ व्हाई नॉट आस्क देम और ट्रेन द टीचर्स टू यूज स्मार्टफोन्स इन देयर फॉर देयर टीचिंग। तब वहाँ पे क्या हुआ कि टीचर्स को ये प्रॉब्लम या ये कंप्लेन करने का मौका कम मिला कि हम तो आप पढ़ा नहीं सकेंगे टेक्नोलॉजी का यूज करके, बिकॉज all of them have got smartphones, they are quite handy with that one, they are using that smartphone effectively। तो वो आईसीटी को क्लासरूम या लर्निंग में यूज करने के लिए स्मार्टफोन के द्वारा वो कर सकते हैं, और उसकी ट्रेनिंग डिफरेंट एजेंसीज चलाता है आजकल हमारे इंडिया में। डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पहले आईसीटी का मतलब कंप्यूटर और लैपटॉप के थ्रू आईसीटी का कैसे यूज करेंगे टीचर्स, ये समझाया जाता था, लेकिन अब ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कराया जा रहा है, there they are trying to train the teachers or develop the huge bank of teachers, master trainers who are capable of using this one smartphone for teaching and learning। बहुत सारा ट्रेनिंग एनसीईआरटी, एससीईआरटी ये सब चलाती है कि मोबाइल फोन्स का कैसे यूज करें। उसी तरह से ये भी सिखाया जा रहा है टीचर्स को कि मोबाइल एप्स कैसे, एजुकेशनल एप्स कैसे वो बनाएं, क्योंकि स्मार्टफोन आजकल सबके पास है, स्मार्टफोन दे आर हैविंग विद इंटरनेट कनेक्शन। तो ये आपका यूज हो सकता है आईसीटी का व्हेन द टीचर्स एटीट्यूड इज देयर, दे कैन यूज देयर स्मार्टफोन्स टू teach the student, to reach to the students and effectively deliver the content and whatever curriculum is there to the student। तो ये जो आपका डिफरेंट आईसीटी का, और देखिए अलग अलग ये कुछ 4 जोन्स के बारे में बात किया गया है। एक जोन है कि आईसीटी के द्वारा ये कैपेबिलिटी है कि वो कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर को ध्यान में देखते हुए कंटेंट डेवलप कर सके। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर नहीं दिया था तो शायद दूसरी क्लास में मैंने दिया होगा। जब वो व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, वंस यू आर गोइंग टू चॉइस, गो फॉर द चॉइस फॉर इमोकेशंस, इमोशन जब आप डालने जाते हैं, स्माइली या जो भी थम्स अप, they give you different colors of that is showing that you are quite sensible of their culture। ठीक है, आप अफ्रीका का एक व्यक्ति हैं, आप वहां पे अगर आप ये थम्स अप का सिंबल देने जाते हैं, they must be liking that thumbs up should be little gray in color, वो ग्रे कलर को अप्रिशिएट करेंगे। so that's why you are making it context and culture specific। leadership and vision। हेलो सर, मेरा कट कट जा रहा है, कुछ नहीं सुन पाए हैं। हेलो हेलो हेलो, सर, गुड आफ्टरनून सर। सुनिए आप, सर आज हाँ कट यू, कट जा रहा है। ओके ओके, यू विल गेट द प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन मेरा मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। थैंक यू। वेट फॉर अ मिनट।
हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? सुन रहे हैं Yes, आप? sir. हाँ। Yes, sir. सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कॉन्टेक्स्ट और कल्चर को ध्यान में रख के आप आईसीटी बना सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर लीडरशिप एंड विजन्स। वो आपके एक लीडरशिप रोल को प्रमोट करने के लिए, लीडरशिप प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज, आप प्लानिंग मैनेजमेंट में भी अगर इसका यूज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका आईसीटी का यूज हो सकता है। But if you are using ICT, some competency you should possess. आपके अंदर कुछ competencies होनी चाहिए, जब भी आप ICT का effective use कर सकेंगे। First of all, you should have got the knowledge of pedagogy. I have already talked about TPAC. TPAC के बारे में शायद आपको बताया, आप लोगों को बताया थे ना? TPAC, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। आपके पास टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज होना चाहिए कि कैसे टेक्नोलॉजी को आपके पेडागोजी के अंदर इंक्लूड करना है, और देन यू कैन डिलीवर द कंटेंट। एक कंटेंट को डिलीवर करने के लिए जब आप टीचर ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, आपके पास कंटेंट होता है। जब आप टीचर ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी पेडागोजी डेवलप होती है, और जब आईसीटी उसके अंदर यूज कर देते हैं तब वो टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज होता है। तो उसी के द्वारा आप ये कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को आप इफेक्टिवली अपने पेडागोजी में इंक्लूड करके कंटेंट डिलीवरी कर सकते हैं। कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, यू शुड नो हाउ टू कोलैबोरेट, हाउ टू सेट अप ए नेटवर्क। नाउ आई एम टेकिंग ए क्लास, इट इज ए नेटवर्क आई हैव एस्टैब्लिश्ड। एक नेटवर्क पॉसिबल हुआ है तब आप लोग 19-20 लोग यहाँ कनेक्टेड हैं, तो इसी के द्वारा आप ये क्लासेस सक्सेसफुली कंडक्ट कर सक रहे हैं। टेक्निकल इश्यूज अगर है, see sometimes you have got experiences of so many technical issues while we are going for online classes. A teacher should possess that skill that how to resolve those technical issues. एक टेक्निकल इश्यूज जब आता है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। he should not coming into tension and he should try to click here and there and just try to what you say stop the class and going for some other alternative. ये करने की जरूरत नहीं है। You have to be skilled enough so that you can handle the technical challenges. Technical challenges को आपको handle करना आना चाहिए। And then again social issues. Social issues are there. So many social issues are there. आपको ये देखना है कि जो भी आप ICT का यूज कर रहे हैं उसमें कोई आप सोशल बिलीफ्स को या सोशल कल्चर को कहीं ना कहीं ठेस ना पहुंचा रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ों को भी आपको ध्यान में देने का चीज़। फॉर एग्जांपल, आई एम सिटिंग इन ए नेटवर्क, हम एक नेटवर्क में बैठे हुए हैं। अभी अगर आप लोग कुछ लोग अपना, मैं बोलूं कि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर दें, यू शुड बी इन ए पोजिशन टू स्विच ऑन योर वीडियोज़। अगर आप कोई ऐसे पोजिशन में नहीं है, कोई ऐसा सोच रहा है कि हम तो घर में बैठे हुए हैं, हमको क्या ज़रूरत है कि हम रेडी होके बैठें या एक प्रॉपर पोस्चर में बैठें, प्रॉपर यूनिफॉर्म में बैठें, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि आप सोशल इश्यूज़ के बारे में अवेयर नहीं है। यू आर इन ए सोशल गैदरिंग, आप एक सोशल गैदरिंग में हैं, 20 लोग कनेक्टेड हैं इसके साथ, तो यू हैव टू बी आल्सो प्रिपेयर्ड। I have heard about certain certain school experiences, कुछ स्कूल के बारे में एक टीचर बता रहे थे कि there they have advised the child, स्टूडेंट को बोला गया है कि 10 o'clock और 9 o'clock में they should जैसे स्कूल का रूटीन होता है उसके हिसाब से वो अपने आप को रेडी करें, प्रिपेयर करें, टेक बाथ एंड अदर्स, ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग, एंड ड्रेसअप करें, और दे गो फॉर द प्रेयर करें, एंड देन दे कैन पोस्ट दी इमेजेस। तो वो एक तरह से आपको इसके लिए भी कि सोशल इश्यूज जो है उसके लिए भी आपको ये होना चाहिए कि अगर आप नेटवर्क पे हैं, सपोज यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, आप घर में बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वंस यू आर कनेक्टेड देन यू हैव टू बी डिफरेंट। आपको थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा। आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचना होगा। आपको जो शब्द आप यूज कर रहे हैं, जो वोकैबुलरी आप यूज कर रहे हैं, दैट वन यू शुड बी चूजिंग वेरी केयरफुली। आपको बहुत ध्यान से उनको चुनना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा। जब आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, यू कैन आइदर यूज वॉइस, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मैं अपना वीडियो बंद कर दूं और वॉइस से सिर्फ कम्युनिकेट करूं। वीडियो कैन बी आल्सो देयर, डेटा कैन बी आल्सो देयर, समटाइम्स आई कैन
व्हाट्सएप में हम लोग या गूगल क्लासरूम में मैं मटेरियल शेयर कर देता हूँ, दैट इज ऑल्सो वन वे। टेक्स्ट मटेरियल मैंने शेयर कर दिया। CAI हो सकता है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर मीडिएटेड एजुकेशन, ये सब अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। एंड इट कैन बी प्रिंट आल्सो, प्रिंट मीडियम में भी हम आपको प्रिंटेड मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फिर वही पॉइंट सबका रिपीटेशन है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ अपडेटेड डेटा, क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कनेक्टिंग ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड रीजन, कैटरिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वाइडर रेंज ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, वाइडर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल्स। तो ये सारे चीज भी आपका ICT के एडवांटेजेस हैं। रिकमेंडेशंस, क्यों इसको रिकमेंड किया जा रहा है? क्योंकि इसका डीप इम्पैक्ट है, रिस्पॉन्ड टू चेंज मच फास्टर। तो आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है, लोग इसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं बहुत। अगर मैं आपको एक ऑनलाइन फॉर्म गूगल क्वेश्चनियर भरने के लिए देता हूँ, देखिए कितना जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर मैं इसको मैनुअली करता, महीना सप्ताह ऐसे रह जाता। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका रिस्पॉन्स के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। अर्जेंट टू रिलाइन दी करिकुलम फ्रेमवर्क, हमारा जो नया करिकुलम है उसके हिसाब से इसको ढाला जा सकता है। ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन के लिए इसको यूज हो सकता है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट उसमें आप इसको यूज करें। टीचर्स इन प्रोफेशन, कॉन्टिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इसको यूज किया जा सकता है। टीचर एजुकेटर्स प्लान टू इंट्रोड्यूस टू इंश्योर हाई, टीचर एजुकेटर्स जैसे हम लोग हैं, टीचर एजुकेटर्स हैं, तो वो आप इसको यूज कर सकते हैं सो दैट यू कैन एनहांस द लर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, and when they are going to be teacher, then they can also create deep impact on their students. तो इसके लिए भी आप ICT को यूज कर सकते हैं। It can be used by the teacher educators, educational authorities and stakeholders, जितने भी stakeholders हैं वो इसका यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग appropriate information system के लिए इसका यूज किया जा सकता है। रीडिफाइनिंग द प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, किसी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट आपको बनाना है, देयर आल्सो यू कैन यूज ICT के द्वारा उसको कर सकते हैं। सो दीज आर सम मेजर एस्पेक्ट ऑफ ICT का कुछ मेजर एस्पेक्ट था जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया, और ये हमको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा टेक्निकल चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया है, जस्ट जनरल डिस्कशन वाज देयर। आई हैव गिवन यू सेवरल पॉइंट्स, बहुत सारा पॉइंट्स मैंने आपको दिया जिसको कि आप लोग यूज कर सकते हैं वंस यू आर गोइंग फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। अपने एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट करने के लिए आप यहाँ से पॉइंट्स ले सकते हैं। टुडे आई विल अपलोड दिस मटेरियल, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, एंड आई विल अपलोड दिस पावर पॉइंट टू गूगल क्लासरूम आल्सो। तो ये आपको मिलेगा। आप लोग एक दो लोग को अगर कुछ क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं, दे कैन आस्क, देन आई विल फिनिश द क्लास। Any question? Any idea they want to share? Any idea which I gave you that you try to prepare certain YouTube videos, educational videos, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कोई? हाँ बोलिए। सर टेबल टॉप कैमरा क्या है सर, समझ? अच्छा ठीक है, ये चीज अब देखिए गूगल पे करिएगा तो अभी आपको मिल जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू जस्ट, इट इज ए सिंपल अरेंजमेंट। दैट मीन्स यू कैन, जैसे मैं आपको वीडियो तो मेरा दिख रहा होगा, जस्ट यू कैन मेक वन अरेंजमेंट वेयर यू कैन पुट योर मोबाइल इन द टॉप, ठीक है, दिस वे कैमरा शुड बी डाउनवर्ड्स। और इस तरह से कोई अरेंजमेंट अगर आप कर दें तो आपका जो रिकॉर्डिंग, आप यहाँ नीचे जो आपका प्लेटफॉर्म है, आप एक स्टडी टेबल ले लीजिए और इसके ऊपर ये कैमरा को आप फिक्स कर लें। तो टेबल के टॉप पे कैमरा आप फिक्स कर लेते हैं और इसके मल्टीपल वेज में आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक चेयर ले लिए, हैंड रेस्ट जिसमें हो, तो हैंड रेस्ट के ऊपर में आप एक ये लगा के, एक सपोर्ट लगा के वहाँ कैमरा रख दीजिए, या दो कॉपी के बीच में कैमरा रख दीजिए, मोबाइल अपना स्मार्टफोन रख दीजिए, और नीचे में आप अपना जो भी लिखना चाहते हैं उसको आप रखिए, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग एंड एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। और आप अगर उसको और ये आपके इनोवेशन के ऊपर है। सिंपल गांव के टीचर्स इसमें वीडियो बनाते हैं,
बहुत सारे इस तरह के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और थोड़ा सा लाइटिंग का अरेंजमेंट देख लीजिए, अगर आपको बहुत अच्छा लाइटिंग चाहिए यू ट्राई टू पुट ए दिस वन, जो आपका स्टैंड वाला लाइट होता है, टेबल स्टैंड लाइट आल्सो यू कैन पुट। हाँ, लैंप उसको आप रख लीजिए और उसके बाद टेबल में थोड़ा सा ऊपर में मोबाइल को ये कर लीजिए, आप फिक्स कर लीजिए, देन यू कैन प्रिपेयर वीडियोस। फर्स्ट यू ट्राई विद दैट वन, पहले आप उससे ट्राई कीजिए। वंस यू आर कंफर्टेबल विद दैट वन, देन यू कैन गो फॉर दिस वन, व्हाट आई टोल्ड यू, टॉकिंग हेड जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कि आपका सर दिखता हो, आपका फेस दिखता हो एंड यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग, सो दैट इज कॉल्ड टॉकिंग हेड। एंड देन देयर आर अदर थिंग्स आर आल्सो देयर, जैसे कि मैंने बताया आपका स्क्रीन रिकॉर्डर है, स्लाइड रिकॉर्डर्स है, हाँ वो सब भी है, तो वो भी आप ऑनलाइन आराम से आप स्लाइड रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर, ये सब आपको ऑप्शन अवेलेबल है। वेयर व्हाटएवर इज गोइंग, आप एक माइक लगा लीजिए जैसे मैंने अभी लगाया हेडफोन, और उसके बाद अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लीजिए पावर पॉइंट, एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग, आपका एक्सप्लेनेशन आप स्टार्ट कीजिए, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। नाउ डेज पावर पॉइंट में तो ऐसे ही नरेशंस की कैपेबिलिटी इनबिल्ट है, उसमें एक आता है ऑप्शन नरेशंस की, हाँ, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसके द्वारा आप डिफरेंट वेज में आप उसको तैयार करके आप इसको, अगर वो अच्छा बनता है देन यू कैन गो फॉर दिस अपलोडिंग ऑन योर यूट्यूब में अपलोड कीजिए, और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। विजिबिलिटी विल बी मच मोर, मैंने बताया ना कि दूसरे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा विजिबिलिटी आपको यूट्यूब पे रहता है, यूट्यूब पे, यस सर, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी देखिए, वो सबसे पहले अगर वो जाता है तो सबसे पहले वो बोलेगा यूट्यूब वीडियो ही देखना उसको, तो वो सोचिए कि वो एक्सेसिबिलिटी आपका बहुत ज़्यादा रहता है, एंड यू कैन क्रिएट इंटरेस्टिंग। सर आजकल सब बच्चों का एक चैनल भी होता है अपना। हाँ, चैनल सब भी, छोटे बच्चे लोग का चैनल सब है छोटा, और वो दे आर मेरे घर में सब बच्चों का है। हाँ, दे आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर आल्सो, देयर बहुत पॉपुलर भी हैं वो लोग। तो और ये मैंने ये भी बताया कि यूट्यूब इज क्वाइट डिसेंट आल्सो, जैसे मैंने बोला कि यू कैन गो फॉर टिकटॉक एंड अदर, बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसको उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेशन सब है। हाँ, बट यूट्यूब इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल, इसमें आप अपना चैनल क्रिएट करिए और उसमें वीडियोस अपलोड कीजिए, उनको उसका सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स को पहले बोल सकते हैं, एंड लेटर ऑन द पीपल विल सब्सक्राइब, तो ये आप कर सकते हैं, दैट वन यू कैन डू एंड यू कैन एक्सप्लोर। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास एंड